National Film Award ceremony is currently underway. Let's cut across. And those are the visuals, in fact, that we are getting right now, viewers, at this point in time. 71st National Film Award ceremony is happening in the national capital. You've got superstar Shah Rukh Khan, who has arrived to receive his first ever national award. It's going to be a star-studded event this time. And there you can see the visuals of Shah Rukh Khan. And this is going to be a very, very important day for Shah Rukh Khan specifically and his fans, because after being in the world of cinema in Bollywood, it's for the first time that somebody like Shah Rukh Khan is going to receive a national award. It's a big event, the National Film Award ceremony. 71st ceremony is happening at Vigyan Bhavan in the national capital. It's a big event to celebrate the best work from Indian cinema. We have President Draupadi Murmu, who will be presenting the awards to the winners of 71st National Film Awards. And there you can see her present on the stage. And let's listen in to the commentary there. हृदय से स्वागत है। संपूर्ण भारतवर्ष से आए हुए पुरस्कृत कलाकार, निर्णायक मंडल एवं समस्त विशिष्ट अतिथिगण, जिनकी उपस्थिति से ये आयोजन और अधिक सार्थक बन रहा है, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये पुरस्कार समारोह भारतीय फिल्मों की श्रेष्ठता और रचनात्मकता से परिचित होने के साथ साथ सिनेमा जगत की महत्वपूर्ण शख्सियतों से रूबरू होने का भी एक अनुपम अवसर प्रदान करता है। And ladies and gentlemen, we extend a warm welcome to distinguished guests on the stage, and we put our hands together for Honorable President Srimati Draupadi Murmu, Honorable Minister for Information and Broadcasting, Railways, Electronics and IT, Shri Ashwini Vaishnav, Secretary, Ministry of Information and Broadcasting, Shri Sanjay Jaju, our esteemed jury members, Shri Ashutosh Gwarikar, Shri P. Sheshadri, and Shri Gopal Krishna Pai. कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करते हुए मैं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के माननीय सचिव श्री संजय जाजू जी को स्वागत संबोधन प्रस्तुत करने के लिए सादर आमंत्रित करती हूं। Respected Rashtrapati Ji, Honorable Minister Shri Ashwini Vaishnav Ji, distinguished jury chairs Shri Ashutosh Gwarikar Ji, Shri T. Sheshadri Ji, Shri Gopal Krishna Pai Ji, all the awardees, members of the film fraternity, officials, friends from media, bhaiyon aur behnon. It's my privilege to welcome you all this evening to the 71st National Film Awards. आज की ये शाम एक समारोह से ज्यादा एक उत्सव है। उत्सव कहानियों का, उत्सव सपनों का, उत्सव कला का, जो हम सबको जोड़ती है। Cinema in India is not only what we watch on screen. It's our collective laughter, our shared silence, and the dreams that bind generations. The National Film Awards have always stood at the confluence of preservation and innovation. And this year, we see both vividly. Films like 12th Fail echo the grit of ordinary Indians, while Kathal makes us smile even as it sharpens our social awareness. Udduluk brings female voices powerfully to the fore. Ringdo Ginta confronts us with hard truths, while Jawan and Rocky or Rani Ki Prem Kahani show that mainstream cinema can carry both joy and meaning. Alongside these films, Vash, Parking and Pushkar reminds us that linguistic diversity and local stories enrich our collective imagination. Friends, this evening belongs to legends and also to firsts. Padma Bhushan Shri Mohanlal Ji is honored with the Dada Sahab Phalke Award. For more than 4 decades, he has been many men on screens. Soldier,
poet, neighbor, king. And yet, in the hearts of millions, he has always remained Lalitan. He shows us that cinema is not just performance, it's also humility and service. And then history is made. Shri Shah Rukh Khan ji, the man whose smile has crossed borders, whose dialogues have become a collective vocabulary, receives his first national award. His journey from Delhi theatre to global stardom is a story in itself. मैं कौन हूं? मैं क्या हूं? He asked in Jawan. Tonight, the answer is simple. He is not just the national award winner, but he is forever the King of Hearts. Sitting beside him is Sri Vikrant Messi, also a first-time winner, honored for 12th film. His journey from television sets to this stage mirrors the resilience of millions of young Indians who refuse to give up on their dreams. And Rani Mukherjee, very difficult to say, Rani Mukherjee ji, winning her first national award for Mrs. Chatterjee versus Norway. She brought alive the indomitable spirit of a mother and strength of a mother. एक माँ की ताकत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होती है. Her triumph tonight is the triumph of every mother who fights for her children. Even the awards themselves saw a first. Hanuman, recognized in the AVGC category, showing how India is ready to embrace the future of animation, gaming and visual storytelling. Then this year is also a year of legends and many firsts. But the story of this year does not end with the stars. The non-feature awards remind us that cinema also thrives in silence, in reflection, in courage. Flowering Man, a sensitive portrayal of identity in families. God, Vulture and Humor, exploring organ donation through the eyes of coordinators. Mao, the spirit dreams of Chera, reviving a cultural tradition of Mizoram. Sunflowers were the first ones to know, meditating on belief and memory. और फिर फिल्में जैसे लिटिल विंग्स, धुंधगिरी के फूल, मूविंग फोकस, जो दिखाती है कि सिनेमा केवल कहानी नहीं बल्कि संगीत, लय और रोशनी भी है. यह फिल्म बड़े पर्दे की छाया में नहीं है बल्कि उसके मायने और गहराई को और बढ़ाती है. None of this would have been possible without our esteemed jury. I offer my heartfelt thanks to all the members of the jury led by Shri Ashutosh Govarikar ji, Shri Shadri ji and Gopal Krishna Pai ji. With fairness, wisdom and sensitivity, they have shaped this evening's celebrations. आपका योगदान अमूल्य है. Friends, a few months back, India also hosted the World Audiovisual and Entertainment Summit, WAVES. It was not a conference. It was a festival of culture, creativity and technology. At WAVES, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji said, "This is the time of dawn of orange economy in India. Content, creativity and culture. These are the three pillars of our orange economy." Unquote. वह एक ऐसा मंच था जहां सितारे भी थे, बड़े CEOs भी थे और युवा क्रिएटर्स भी थे. They all stood together, not separated by age or title, but united by imagination. It was a humane moment where the wisdom of experience met the daring of youth, where cinema, music, gaming and technology came together in one conversation. It shows us that the future of India's creative economy is not about silos, but about bridges. As I stand here this evening, we see more than awardees and winners. We see a family of storytellers, from the young student in Pune who dared to make Flowering Man to the superstar whose Jawan brought millions to the theatres, from the delicate voice of Garo cinema to the grand vision of Malayalam legends. This is the magic of Indian cinema. एक देश, हजारों कहानियां, लेकिन एक जुनून, कहानी कहने का जुनून. Our cinema makes us laugh together, cry together, and sometimes even sit in silence together. But above all, it brings us together. This is its greatest gift.
आज यहां बैठे सिनेमा जगत के फनकार, कलाकार और सम्मानित हस्तियों के लिए दो शब्द कह के अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। नए किस्से, नई कहानियां, किरदार आएंगे कई। मोम की तरह हर शक्ल में मैं ढल जाना चाहता हूं। मैं ख्यालों को लफ्जों का गहना पहनाना चाहता हूं, दिल को अपनी यादों से फिर बहलाना चाहता हूं। Once again, on behalf of the Ministry of Information and Broadcasting, I extend a very warm welcome to all of you and everyone who carries cinema in their hearts. I welcome you all to this celebration of creativity, courage and storytelling. धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हार्दिक आभार माननीय सूचना एवं प्रसारण सचिव श्री संजय जाजू जी। सम्मानीय अतिथिगण, उत्कृष्टता को सम्मानित करने के सुनहरे पलों की ओर बढ़ते हुए अब 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का वितरण प्रारंभ करते हैं। अत्यंत कृतज्ञ भाव से मैं माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से विनम्र आग्रह करती हूं कि कृपया पुरस्कार प्रदान करने के लिए मंच पर आगे आएं। आदरणीय राष्ट्रपति महोदया। And may I also request Honorable Minister Shri Ashwini Vaishnav and INB Secretary Shri Sanjay Jaju to kindly join Honorable President for the distribution of awards. पुरस्कार वितरण के क्रम में सबसे पहले सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। This award aims to promote understanding, appreciation and critique of cinema as an art form to further develop it. Additionally, it aims to encourage the dissemination of the significance of cinema and related activities to the public through book reviews. इस श्रेणी में प्रथम पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मंच पर आमंत्रित हैं श्री उत्पल दत्ता, जिन्हें उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित स्वर्ण कमल से सम्मानित किया जा रहा है। Shri Utpal Datta is awarded for his significant and wide-ranging critical writings on cinema, with a particular focus on Assamese language, where he explores its social, cultural and technical aspects. सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक का पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं श्री उत्पल दत्ता। कार्यक्रम का अगला पड़ाव गैर फीचर फिल्म श्रेणी के पुरस्कार। इस श्रेणी में 3 विशेष उल्लेख समेत कुल 27 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। विशेष उल्लेख श्रेणी का पहला पुरस्कार ओडिया फिल्म द सी एंड द 7 विलेजेस को प्रदान किया जा रहा है। फिल्म के निर्माता कदम्बिनी मीडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से डॉक्टर इतिरानी समतना को प्रमाण पत्र प्रदान किया जा रहा है। The Sea and the 7 Villages powerfully portray climate displacement, highlighting the anguish of Odisha's coastal community lost to rising seas and policy neglect. ओडिया फिल्म द सी एंड द 7 विलेजेस को विशेष उल्लेख का सम्मान पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं डॉक्टर इतिरानी समतना। विशेष उल्लेख श्रेणी का दूसरा पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं इसी फिल्म के निर्देशक श्री हिमांशु शेखर खतुआ। आपको भी प्रमाण पत्र का सम्मान। Ladies and gentlemen, the film depicts the stories of displaced coastal communities in Odisha, documenting their loss and resilience in the face of climate change. मलयालम फिल्म नेकल क्रॉनिकल ऑफ द पैडी मैन को भी मिल रहा है विशेष उल्लेख का सम्मान, जिसे प्राप्त करने के लिए मंच पर पधार रहे हैं फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर श्री M.K. रामादास। Nekal Chronicle of the Paddy Man is recognized for its powerful portrayal of a tribal farmer as a dedicated guardian of heritage farming, highlighting his unwavering commitment and his invaluable collection of indigenous paddy varieties. गैर फीचर फिल्म श्रेणी का अगला अवार्ड सर्वश्रेष्ठ पटकथा। कन्नड़ा फिल्म सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो के लिए पटकथा लेखक श्री चिदानंद एस नायक को रजत कमल। Sunflowers Were the First to Know is awarded for the evocative use of folklore which waves the sense of smell as a subtle leitmotif, a theme to sensitively explore nuances of belief systems. सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार कन्नड़ा फिल्म सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो के लिए पटकथा लेखक कर रहे हैं प्राप्त। सर्वश्रेष्ठ नरेशन वॉइस
ओवर के लिए अंग्रेजी फिल्म द सेक्रेड जैक एक्सप्लोरिंग द ट्री ऑफ विशेस के लिए श्री हरे कृष्णन एस को रजत कमल के पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। The Sacred Jack Exploring the Tree of Wishes is recognized for its distinguished narration, which seamlessly blends impeccable English pronunciation with perfectly nuanced delivery of region-specific names, significantly enhancing the narrative's authenticity and immersion. श्री हरिकृष्णन एस अपना राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करते हुए गैर फीचर फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के पुरस्कार का सम्मान फिल्म द फर्स्ट फिल्म के लिए संगीत निर्देशक श्री प्रणव देसाई को जाता है। आपकी कलात्मकता के लिए आप प्राप्त कर रहे हैं रजत कमल। The first film leaves a lasting impression for its playful use of music to enhance the mood and evoke the characters' emotions, including delightful use of tabla to invoke timeless tradition-rooted feelings. श्री प्रणव देसाई को पुरस्कार की बधाई। अगला पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ संपादन अंग्रेजी फिल्म मूविंग फोकस को दिया जा रहा है, जिसके लिए श्री नीलाद्री रॉय को रजत कमल का सम्मान। Best Editing Award for the film Moving Focus for its seamless and clear portrayal of Gautam Ghosh's expansive cinematic journey with rhythmic elegance. श्री नीलाद्री रॉय राष्ट्रीय पुरस्कार का सम्मान प्राप्त करते हुए अगला पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ साउंड डिजाइन हिंदी फिल्म धुंधगिरी के फूल को दिया जाता है, जिसके लिए साउंड डिजाइनर श्री शुभारूण सेन गुप्ता को रजत कमल का सम्मान मिल रहा है। Dhundagiri Ke Phool is recognized for its sophisticated sound design, adeptly employs multi-layered forms to construct a profound, rich and emotionally resonant soundscape. सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी के लिए तमिल फिल्म लिटिल विंग्स के सिनेमेटोग्राफर लेट श्री सरवणा मरुदु सौंदरा पांडी को रजत कमल का सम्मान। श्री सरवणा मरुदु सौंदरा पांडी की ओर से ये पुरस्कार ग्रहण कर रही हैं श्रीमती मुथुलक्ष्मी। The film Little Wings employs masterful use of natural light, dynamic framing to capture the rural landscape, the socio-cultural context and the quiet resilience of its characters. इसी श्रेणी में फिल्म लिटिल विंग्स के लिए सुश्री मीनाक्षी सोमन को भी रजत कमल पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। And ladies and gentlemen, Meenakshi Soman was recognized as one of IFFI Goa's 75 Creative Minds of Tomorrow in 2021. And here she is. ये है सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी का पुरस्कार। गैर फीचर फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार हिंदी फिल्म द फर्स्ट फिल्म के निर्देशक श्री पीयूष ठाकुर ने प्राप्त किया है। श्री पीयूष ठाकुर का अभिनंदन करें, जिन्हें उनके सराहनीय निर्देशन हेतु स्वर्ण कमल से सम्मानित किया जा रहा है, द गोल्डन लोटस। The film presents subtle layers of female empowerment and personal agency woven into the narrative. गैर फीचर फिल्म श्रेणी के सर्वश्रेष्ठ निर्देशक श्री पीयूष ठाकुर प्राप्त कर रहे हैं स्वर्ण कमल। गैर फीचर फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार हिंदी फिल्म गिब्स द स्कैवेंजर के निर्माता एलएनआर फिल्म्स ने अपने नाम किया है। एलएनआर फिल्म्स की ओर से मिस राधिका लावू ग्रहण कर रही हैं रजत कमल। Gibbs the Scavenger presents a cinematic journey that exposes the clash between ethics and survival, where moral dilemmas unfold with compelling simplicity. इसी फिल्म के निर्देशक श्री मनीष सैनी मंच पर पधारते हुए आपको भी प्रदान किया जा रहा है रजत कमल का सम्मान। Ladies and gentlemen, the film is a thought-provoking portrait of a grieving father whose inner battle reveals the uncomfortable truths about the society outside. अगला पुरस्कार सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए दिया जा रहा है हिंदी फिल्म द साइलेंट एपिडेमिक को। सिनेमा फॉर गुड और राहगीरी फाउंडेशन की ओर से निर्माता की ओर से श्री जितेंद्र मिश्रा का ये रजत कमल का सम्मान। मंच पर पधारते हुए श्री जितेंद्र मिश्रा।
The silent epidemic reveals the devastating reality behind India's traffic crisis through the lives of 4 accident victims, including a Paralympic gold medalist. इसी फिल्म के लिए निर्देशक श्री अक्षत गुप्ता को भी रजत कमल का सम्मान। It's a timely documentary that humanizes the impact of road accidents while upholding the values of empathy, responsibility, and civic awareness. सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र बेस्ट डॉक्यूमेंट्री के पुरस्कार के लिए फिल्म गॉड वल्चर एंड ह्यूमन को चयनित किया गया है। फिल्म के निर्माता स्टूडियो लिची एंड डॉक्टर राजेश चंदवानी को रजत कमल का पुरस्कार। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं डॉक्टर राजेश चंदवानी। और इसी फिल्म के लिए निर्देशक श्री ऋषिराज अग्रवाल को भी रजत कमल का सम्मान प्रदान किया जा रहा है। ये फिल्म इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु तीनों फिल्मों में चयनित है। God, Vulture and Human explores organ donation through the lens of the transplant coordinators, highlighting their vital yet often unsung role in the navigating of the emotional and logistical complexities at the intersection of life and death. अगली श्रेणी सर्वश्रेष्ठ कला सांस्कृतिक फिल्म की विजेता है अंग्रेजी फिल्म टाइमलेस तमिलनाडु। इस फिल्म के लिए निर्माता सेलिब्रिटीज मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड की ओर से सुश्री निशा प्रशांत चौथानी ग्रहण कर रही हैं रजत कमल। और अब मंच पर आमंत्रित हैं फिल्म के निर्देशक कामाख्या नारायण सिंह। आप भी प्राप्त कर रहे हैं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। A captivating exploration of Tamil Nadu's tourism, which beautifully interweaves the state's rich art, vibrant culture, and delectable local cuisine, enchanting traditional music and dance into a truly immersive experience. सर्वश्रेष्ठ जीवनी ऐतिहासिक पुनर्निर्माण संकलन का पुरस्कार अंग्रेजी फिल्म लेंटिना आओ अ लाइट ऑन ईस्टर्न होराइजन को दिया जा रहा है। निर्माता नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से श्री प्रकाश मखदूम, मैनेजिंग डायरेक्टर एनएफडीसी, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मंच पर और इसी फिल्म के लिए निर्देशक श्री संजीव परासर को भी मंच पर आमंत्रित करती हूं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार ग्रहण करने के लिए। ये है सर्वश्रेष्ठ जीवनी ऐतिहासिक पुनर्निर्माण संकलन का पुरस्कार प्राप्त करने वाली अंग्रेजी फिल्म लेंटिना आओ। और साथ ही निर्देशक सुश्री नीलाक्षी मेधी को भी रजत कमल का सम्मान प्राप्त करने के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूं। Lentina Ao, A Light on Eastern Horizon, celebrates a woman from the remote hills of India's northeast, whose quiet revolution for her people is powerfully conveyed through cinematic simplicity. सर्वश्रेष्ठ जीवनी ऐतिहासिक पुनर्निर्माण संकलन की इसी श्रेणी में ओडिया फिल्म मोबाओ मोगान को पुरस्कृत किया जा रहा है। निर्माता कित्सी विक्सी फिल्म्स और आरएनबी 1820 फिल्म्स की ओर से श्री सुबीर नाथ मंच पर पधार रहे हैं अपने राष्ट्र फिल्म के निर्माता की ओर से पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री सुबीर नाथ। और इसी फिल्म के निर्देशक श्री सुभाष साहू को भी रजत कमल का सम्मान प्रदान किया जा रहा है। Ladies and gentlemen, Mobao Morgan presents a poignant and poetic tribute to the mother figure as a guardian of tradition and culture,
urging the preservation of core values of society. देवियों सज्जनों, निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ प्रथम गैर फीचर फिल्म का अवार्ड दिया जा रहा है मिजो भाषा की फिल्म माओ द स्पिरिट ड्रीम्स ऑफ चिराओ को, और इसके लिए निर्देशक सुश्री शिल्पिका बोजोलाई को स्वर्ण कमल से अलंकृत किया जा रहा है। Mao, the Spirit Dreams of Chirao is a uniquely aesthetic exploration of cultural roots through cinema, reviving the forgotten origin story of a popular traditional dance in a thought-provoking journey of identity and heritage. निर्देशक सुश्री शिल्पिका बोजोलाई अपना पुरस्कार ग्रहण करते हुए और सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार हिंदी फिल्म फ्लावरिंग मैन को दिया जा रहा है। निर्माता है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिनकी ओर से श्री धीरज सिंह प्राप्त कर रहे हैं प्रतिष्ठित स्वर्ण कमल द गोल्डन लोटस। Distinguished guest, Flowering Man is awarded for its remarkable craft, lyrical style, layered visual design that creates a cohesive narrative with multi-layered resonance. ये है सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार, और इसी फिल्म के लिए निर्देशक श्री सौम्यजीत घोष दस्तीदार को भी स्वर्ण कमल का सम्मान। श्री सौम्यजीत घोष दस्तीदार जो सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं फिल्म फ्लावरिंग मैन के लिए। At this point, we thank Honorable President and distinguished guests for presenting these awards. We request you to kindly take your seats as we now present a short film on National Film Archives of India. देवियों सज्जनों, नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया 6 दशकों से भारतीय सिनेमा की अमूल्य धरोहर को सुरक्षित रखते हुए भारतीय सिनेमा की स्मृतियों का संरक्षक और सांस्कृतिक विरासत का प्रहरी बनकर दुर्लभ फिल्मों, पटकथाओं, पोस्टर्स, तस्वीरों और सिनेमा से जुड़े अन्य दस्तावेजों को संरक्षित करता आ रहा है। आगे बढ़ाने में अहम योगदान दे रहे हैं इस तरह के फिल्मकार। देवियों और सज्जनों, संविधान में अनशेड्यूल्ड भाषाओं में शामिल है गारो भाषा। सर्वश्रेष्ठ गारो फिल्म का पुरस्कार फिल्म रिम दो गित्तांग को दिया जा रहा है। निर्माता एना फिल्म्स, अनकॉम बुद्धा और जॉयस स्टूडियो की ओर से सुश्री इवा गुन्मे रक्षक मारक को प्रदान किया जा रहा है सिल्वर लोटस। The film is awarded for its immersive rural storytelling grounded in folklore and communal tension, exploring fear, prophecy, social division through the sensitive perspective of a 10-year-old boy. और तालियों से स्वागत करें फिल्म के निर्देशक श्री डोमिनिक मेगम सांगमा का, जो मंच पर पधार रहे हैं अपने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार को ग्रहण करने के लिए। ये है सर्वश्रेष्ठ गारो फिल्म रिम दो गित्तांग। और अगला पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म के लिए फिल्म भगवंत केसरी का चयन किया गया है। फिल्म के निर्माता शाइन स्क्रीन्स इंडिया LLP की तरफ से श्री साहू गारापाटी रजत कमल प्राप्त कर रहे हैं। As you could see in the visuals, the film portrays transformation of a timid teenage girl into a strong and brave woman, combining emotionally resonant characters with high impact action and thematic depth. और फिल्म के निर्देशक श्री अनिल कुमार मंच पर पधारते हुए श्री अनिल कुमार रावीपुडी को भी रजत कमल का सम्मान प्रदान किया जा रहा है। ये है सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म भगवंत केसरी। सर्वश्रेष्ठ तमिल फिल्म है फिल्म पार्किंग। फिल्म के निर्माता सोल्जर्स फैक्ट्री एंड पैशन स्टूडियो की तरफ से श्री KS दिनेश हासिल कर रहे हैं रजत पुरस्कार का गौरव। Ladies and gentlemen, Parking creates a tightly woven drama of escalating ego using seemingly trivial parking space conflict to explore pride, moral compromise and generational tension in urban households. और इसी फिल्म के लिए निर्देशक और पटकथा लेखक श्री राम कुमार बालाकृष्णन को भी उनके सराहनीय कार्य के लिए रजत कमल से अलंकृत किया जा रहा है।
ये है सर्वश्रेष्ठ तमिल फिल्म पार्किंग। और अब बारी है सर्वश्रेष्ठ पंजाबी भाषा की फिल्म की, और ये सर्वश्रेष्ठ पंजाबी फिल्म है फिल्म गोडे गोडे चा। श्री वरुण विजय अरोड़ा को निर्माता VH एंटरटेनमेंट और जी स्टूडियोज की ओर से रजत कमल प्राप्त करने के लिए मंच पर आमंत्रित कर। The film is awarded for challenging the regressive traditions and transforming a rite of passage, wedding ritual, into a powerful symbol of female solidarity and empowerment. और फिल्म के निर्देशक श्री विजय कुमार अरोड़ा मंच पर पधारते हुए सर्वश्रेष्ठ पंजाबी फिल्म गोडे गोडे चा के निर्देशक श्री विजय कुमार अरोड़ा अपना पुरस्कार ग्रहण करने के लिए मंच पर। यह है सर्वश्रेष्ठ पंजाबी फिल्म का पुरस्कार। Prestigious national awards there being handed out by President Draupadi Murmu, but all eyes are set for Shah Rukh Khan to receive his first ever national award. There is also Mohanlal who's present there and Rani Mukherjee to collect their awards. Vash delivers a spine-chilling performance, unleashing a terrifying transformation through body language that is tense, twisted and unpredictable, heightening the creepy sense of dread. और फिल्म के निर्देशक श्री कृष्णदेव याग्निक को भी मंच पर आमंत्रित करती हूं। आपके सराहनीय निर्देशन के लिए आपको भी प्रदान किया जा रहा है सिल्वर लोटस। यह है सर्वश्रेष्ठ गुजराती फिल्म का पुरस्कार, और पुरस्कार की विजेता फिल्म वर्ष के निर्देशक श्री कृष्णदेव याग्निक प्राप्त कर रहे हैं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। अगला पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ बंगाली फिल्म का, जिसके लिए फिल्म डीप फ्रिज को पुरस्कृत किया जा रहा है। निर्माता कलर्स ऑफ ड्रीम एंटरटेनमेंट की ओर से श्री कृष्णा मुरारी क्याल रजत कमल ग्रहण करने के लिए मंच पर। Deep Fridge is awarded for its mature storytelling, sensitive performances. The film transforms personal estrangement into a story of universal resonance. और इसी फिल्म के निर्देशक श्री अर्जुन दत्ता को भी अब मैं पुरस्कार ग्रहण करने के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूं। ये है सर्वश्रेष्ठ बंगाली फिल्म डीप फ्रिज, जिसे मिल रहा है राष्ट्रीय पुरस्कार। फिल्म के निर्देशक श्री अर्जुन दत्ता मंच पर पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ गीत लेखन का राष्ट्रीय पुरस्कार गीतकार श्री कासरला श्याम कुमार को तेलुगु फिल्म बलगम के लिए उनके द्वारा कलबद्ध गीत और ओरू पल्ले तोरू के लिए प्रदान किया जा रहा है। The award recognizes lyricists' vivid portrayal of rural life, capturing universal themes of home, generational bonds, heartbeat of a village with cultural intimacy. हिंदी फिल्म एनिमल के संगीतकार श्री हर्षवर्धन रामेश्वर को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के तौर पर चयनित किया गया है। आप प्राप्त कर रहे हैं सिल्वर लोटस। Harshvardhan Rameshwar, awarded for creating a background score that serves as a relentless undercurrent of dread, amplifying the primal rage, emotional chaos and fractured psyche of its protagonist. सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए संगीत निर्देशक श्री जीवी प्रकाश कुमार को तमिल फिल्म वाती के लिए रजत कमल का पुरस्कार। The award is given for creating a soulful Vati, the rustic Nadori Manan, and the inspiring One Life. Each composition pulsates with feeling of narrative intent, thereby elevating the film's emotional journey. हिंदी फिल्म सैम बहादुर में अपने मेकअप की कला का बखूबी प्रदर्शन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ मेकअप का पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री श्रीकांत जगन्नाथ देसाई। The film is recognized for its stirring tribute to courage, integrity and patriotism through the life of Field Marshal Sam Manekshaw, evoking a deep respect for India's military legacy. सर्वश्रेष्ठ वेशभूषाकार कॉस्ट्यूम डिजाइनर का पुरस्कार हिंदी फिल्म सैम बहादुर ने किया है अपने नाम। 3 कॉस्ट्यूम डिजाइनर ग्रहण कर रहे हैं ये पुरस्कार। सबसे पहले मंच पर पधार रही हैं कॉस्ट्यूम डिजाइनर सुश्री निधि गंभीर। बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर का अवार्ड ग्रहण कर रही हैं सुश्री निधि गंभीर।
और मंच पर आमंत्रित करती हूं सुश्री दिव्या गंभीर को। आपको भी जाता है बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर का पुरस्कार फिल्म सैम बहादुर के लिए। इस पुरस्कार के तीसरे विजेता हैं श्री सचिन अनंत लोवलेकर। आप भी प्राप्त कर रहे हैं सिल्वर लोटस। Sam Bahadur recreates the mid-20th century Indian military attire with historical accuracy, from uniforms and medals to ornate civilian wear, while emphasizing the authenticity and period detail. धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदया एवं सम्मानित अतिथिगण। और अब मैं ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, रेलवेज एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्री अश्विनी वैष्णव जी से विनम्र आग्रह करती हूं और उन्हें संबोधन के लिए आमंत्रित करती हूं। माननीय मंत्री जी। हम सभी को अपने जीवन से इंस्पायर करने वाले महामहिम राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, साथी सेक्रेटरी संजय जाजू जी, आशुतोष जी, शेषाद्री जी, गोपाल कृष्ण पाई जी और इस बड़े हॉल में एक से बढ़कर एक फिल्मी दुनिया के सभी महानुभाव, आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जूरी को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। इतना फेयर और थॉटफुल सिलेक्शन किया आपने, और उसके बाद में जितने भी लोगों ने आज अवार्ड्स जीते हैं, गिव देम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। कंग्रेचुलेशंस टू ऑल। सबसे ज्यादा अप्लॉज होना चाहिए आज रियल ओजी मोहनलाल जी के लिए। तंगलुरु उग्रम एक्टरान, ट्रू लेजेंड, गिव अ लाउड शाउट आउट। हॉल में आवाज सफिशिएंट नहीं है, और तेज। ये हुई ना बात। कंग्रेचुलेशंस टू ऑल। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत क्लियर विजन है कि भारत को कंटेंट क्रिएशन का हब बनाना है हमें। लास्ट इस तरह के एनएफए अवार्ड में आपके सामने एक प्रॉमिस किया गया था कि विश्व के सामने हम एक नए फॉर्मेट में, एक नए प्लेटफॉर्म को क्रिएट करेंगे। और वेव्स मुंबई में हाल ही में आप सबके सामने आए। बहुत बड़े बड़े लोग आए थे, उसमें कई देशों से द मिनिस्टर्स हैड कम, देन देयर वर CEOs फ्रॉम मेनी कंपनीज। वन CEO of a very large multinational, he said, I had come with an expectation of a third world conference, but I am going back with a benchmark for the first world. There were 1 lakh plus participants from 100 plus countries, 140 sessions, 3,000 plus B2B meets. Earlier our creators used to go abroad. Now the world is coming to India. We are following up the work which was done there. अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में, साउथ कोरिया में, कनाडा में, सब जगह वेव्स बाजार के माध्यम से our content creators product is now finding new markets. एक आपको और प्रॉमिस किया था, we will start a new series of institutions called IICT. The first IICT, Indian Institute of Creative Technologies,
is now functioning in Mumbai in the NFDC campus, and very soon we will start the construction work of the main campus in the film city. बहुत सुंदर उसका डिजाइन बना है, कई राउंड उसके आइट्रेशंस मैं खुद बैठा हूं, and it's going to be an amazing institution going forward. IICT में ऑलरेडी 17 कोर्सेज स्टार्ट कर चुके हैं, पार्टनरशिप्स हो चुकी है एनवीडिया के साथ, मेटा, गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी, WPP, इन सब के साथ ऑलरेडी पार्टनरशिप्स हो चुकी है, एंड वेरी गुड फैसिलिटीज आर बीइंग क्रिएटेड. फ्रेंड्स, एक नया कार्यक्रम लेना है. प्रधानमंत्री जी ने हम सबको इंस्पायर किया है मेक इन इंडिया से, एंड मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड. अब एक कार्यक्रम हाथ में लेने का प्रयास कर रहे हैं. जितने भी फिल्म इंडस्ट्री में इक्विपमेंट यूज होते हैं, ये कैमरा है, बड़े बड़े और भी कई तरह के इक्विपमेंट हैं, इन इक्विपमेंट को मेक इन इंडिया करना है. साथ ही साथ आज की हमारी मिडिल क्लासेस के लिए, यंग जनरेशन के लिए एक बड़ा कार्यक्रम बनाना है, लाइव कॉन्सर्ट इकोनॉमी का. प्रॉपर उसका पॉलिसी सपोर्ट होगा, यूनिफॉर्म गाइडलाइंस होगी, इजी परमिशंस होगी, एंड दैट विल क्रिएट अनदर बिग वेव इन दी ओशन ऑफ क्रिएटर्स इकोनॉमी. फिल्मों की दुनिया है, फिल्मों वाला आज कार्यक्रम है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म, मॉडल स्टेट सिनेमा रेगुलेशन रूल्स. हर राज्य के अपने अपने रूल्स होते हैं. कैन वी हार्मोनाइज देम, कैन वी सिंप्लीफाई देम. जैसे देश में प्रधानमंत्री जी ने 1500 आर्काइक लॉज को हटाया, वैसे ही फिल्म के परमिशन से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं, उनके लिए एक मॉडल स्टेट सिनेमा रेगुलेशन रूल्स बनाने का काम भी हाथ में लिया है. साथियों, these are the most exciting times in our country's history. We are, first time in our history, we have got a big goal in front of our country to be a developed nation, विकसित भारत by 2047. और जब इतना बड़ा गोल प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने रखा है और 140 करोड़ देशवासी उस गोल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इस क्रिएटर्स इकोनॉमी में भी बहुत बड़ी आगे प्रोग्रेस होगी. आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं. भारत माता की. Thank you, Honorable Minister. Ladies and gentlemen, I once again request Honorable President and distinguished guests to come forward and confer the awards for feature film category. और अब 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फीचर फिल्म श्रेणी में पुरस्कारों के क्रम को आगे बढ़ाते हैं. सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्शन डिजाइन मलयालम फिल्म 2018 एवरीवन इज अ हीरो, इसके लिए श्री मोहनदास पी प्राप्त कर रहे हैं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार. As you can see in the visuals, the art team led by Mohandas meticulously construct a 22-acre flood set with 14 houses and water tank structures. मान्यवर फीचर फिल्म श्रेणी में अगला पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ संपादन मलयालम फिल्म पूकालम के लिए श्री मिथुन मुरली को बेहतरीन संपादन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार. The film is recognized for its clean transitions and measured pacing from light-hearted comedy to poignant emotional arcs, ensuring each scene resonates with sincerity. सर्वश्रेष्ठ ध्वनि डिजाइन अवार्ड के लिए हिंदी फिल्म एनिमल में अपनी प्रतिभा का परिचय देने वाले श्री हरिहरन मुरलीधरन प्राप्त कर रहे हैं रजत कमल. Shri Hariharan is recognized for his multifaceted impact in every scene, the tension-rich ambient textures, the bone-crunching combat effects, and more. और इसी श्रेणी में श्री सचिन सुधाकरन भी प्राप्त कर रहे हैं सर्वश्रेष्ठ ध्वनि डिजाइन का राष्ट्रीय पुरस्कार. श्री सचिन सुधाकरन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हिंदी फिल्म एनिमल में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि डिजाइन के लिए. सर्वश्रेष्ठ
पटकथा श्रेणी में मौलिक लेखन के लिए तेलुगु फिल्म बेबी के पटकथा लेखक श्री साई राजेश नीलम को रजत कमल का सम्मान। The award is given for the heart-wrenching rendition of Prabhasana, delivered with emotional depth, classical finesse and melodic intensity. और इसी श्रेणी सर्वश्रेष्ठ पटकथा का दूसरा पुरस्कार संवाद लेखन हिंदी फिल्म सिर्फ एक बंदा काफी है को जाता है। गहन लेखन और जीवन संवादों के लिए संवाद लेखक श्री दीपक इंगरानी ने अपने नाम किया है ये राष्ट्रीय पुरस्कार। सिर्फ एक बंदा काफी है presents a searing courtroom monologues and emotionally charged exchanges that intensify the film's moral urgency and religious catharsis. सर्वश्रेष्ठ छायांकन का पुरस्कार हिंदी फिल्म द केरला स्टोरी को जाता है, जिसके लिए सिनेमेटोग्राफर प्रशांतनु महापात्र प्रशंसा के पात्र हैं। प्रशांतनु महापात्र बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का पुरस्कार ग्रहण करते हुए The Mahapatra are recognized for masterfully capturing each frame to heighten the emotional gravity and realism of the narrative. सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का पुरस्कार हिंदी फिल्म जवान में गीत चलैया में अपने मधुर और संगीतमय आवाज से सबको मंत्रमुग्ध करने वाली शिल्पा राव को प्रदान किया जा रहा है। आपको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की ढेरों बधाई। Shilpa Rao is recognized for the excellence in capturing the romantic elegance, soulful depth, enhancing the character's narrative arc. सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका शिल्पा राव। सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का पुरस्कार तेलुगु फिल्म बेबी में अपनी संगीतमय आवाज से सबको सम्मोहित करने वाले गायक PVNS रोहित को प्रदान किया जा रहा है। Rohit wins the award for his heart-wrenching rendition of Brahmasana, delivered with great emotional depth and classical finesse. पुरस्कारों के क्रम में अब है सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का पुरस्कार। तो देवी और सज्जनों तैयार हो जाइए तालियों के साथ, क्योंकि 5 बाल कलाकार प्राप्त कर रहे हैं ये सम्मान। मंच पर पधार रहे हैं मराठी फिल्म नाल 2 के बाल कलाकार मास्टर भार्गव सुनीता रत्नाकांत जगताप। Story of a differently abled child whose portrayal of money conveys emotions beyond words, anchoring the film in quiet strength. मंच पर आमंत्रित करती हूँ मास्टर श्रीनिवास पोकले को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त करने के लिए। Srinivas presents a perky, enthusiastic performance that beautifully captures a young boy's struggle to convince his little sister to tie a rakhi. इस बाल कलाकार का ये दूसरा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है। मराठी फिल्म नाल 2 के लिए सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मंच पर पधार रही हैं नन्ही त्रिशा विवेक तोसर। A 4-year-old whose spontaneous innocence and expressive presence elevates the story. इनके हाइट पे मत जाइए, इनके मेडल का वेट बहुत ज्यादा है। नन्ही त्रिशा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त करते हुए सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार श्रेणी में ही मराठी फिल्म जिप्सी में अपने सराहनीय कार्य के लिए कबीर शशि खंडारे ने भी रजत कमल का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया है। Kabir wins for his honest and endearing portrayal of Jofia, performed with rare emotional depth. छोटे छोटे बच्चों की बड़ी बड़ी उपलब्धियां। और अब सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार के तौर पर तेलुगु फिल्म गांधी तात्ता चेट्टू में अपने अभिनय क्षमता से सुकृति वेणी बंडरेड्डी ने भी जूरी को किया प्रभावित। तालियों से स्वागत करें इस बाल कलाकार का। The award is for the commitment of the young actress in delivering an emotionally mature, authentic performance with empathy, anchoring the story's moral core with innocence and sincerity. सुकृति वेणी बंडरेड्डी अपना राष्ट्रीय पुरस्कार ग्रहण करते हुए और अब सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार जो 2 कलाकारों को प्रदान किया जा रहा है। गुजराती फिल्म वश में
अपने सशक्त अभिनय के लिए सुश्री जानकी पोडीवाला हैं सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री। Janki delivers a spine-chilling performance, unleashing through body language that is tense, twisted, and unpredictable a great sense of dread. सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार सुश्री जानकी पोडीवाला ग्रहण करते हुए और मलयालम फिल्म उल्लुरुक्कम में अपने जीवंत अभिनय से प्रभावित करने वाली सुश्री उर्वशी भी ग्रहण कर रही हैं सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार। Sushri Urvashi recognized for a portrayal of subtle resilience and inner strength through minimal gestures, anchoring the story's core and elevating its narrative impact. रेडियो सज्जनों, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार भी 2 कलाकारों को प्रदान किया जा रहा है। तमिल फिल्म पार्किंग में अपने दमदार अभिनय के लिए श्री MS भास्कर को रजत कमल, सिल्वर लोटस। Shri Bhaskar presents a nuanced portrayal of an aging neighbor caught in the clash of ego and urban frustration, bringing emotional gravitas and moral ambiguity that anchors the film's psychological intensity. मलयालम फिल्म पूकालम में अपनी उत्कृष्ट अभिनय प्रतिभा के लिए श्री विजया राघवन प्राप्त कर रहे हैं सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार। Shri Vijay Raghavan portrays a character grappling with buried truths, delivering a performance of rare poignancy, imbued with quiet power, subtle humor, and profound vulnerability. और अब सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार हिंदी फिल्म मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे में मिस रानी मुखर्जी के नाम। आपने इस फिल्म में अपने प्रभावशाली अभिनय से दी है उल्लेखनीय प्रस्तुति। Rani Mukherjee, the iconic actress known for her portrayal of resilient women characters, delivers an exceptional performance in Mrs. Chatterjee versus Norway, a film that portrays maternal love, resilience, cultural conflict with piercing emotional clarity and unwavering authenticity. सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार ग्रहण करते हुए रानी मुखर्जी, जिन्हें फिल्म मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए प्रदान किया जा रहा है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का सम्मान। और अब सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो 2 कलाकारों को प्रदान किया जा रहा है। हिंदी फिल्म 12th फेल में अपने अत्यंत जीवंत अभिनय से सबका दिल जीतने वाले अभिनेता श्री विक्रांत मैसी हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। आप ग्रहण कर रहे हैं रजत कमल। Vikrant Messi awarded for 12th Fail for portraying with raw honesty and emotional depth the transformative journey of a village boy, once aimless, later unstoppable to become an IPS officer. विक्रांत मैसी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार ग्रहण करते हुए और हिंदी फिल्म जवान में अपनी सशक्त प्रस्तुति के लिए श्री शाहरुख खान चुने गए हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। आपको प्रदान किया जा रहा है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का सम्मान। Shah Rukh Khan, ladies and gentlemen, globally renowned actor and producer, delivers a powerhouse performance in Jawan, bringing to life a hero who battles not only enemies but also social boundaries. सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ग्रहण करते हुए श्री शाहरुख खान। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के पुरस्कार के लिए अब मंच पर श्री सुदीप्तो सेन का स्वागत करते हैं, जिन्हें हिंदी फिल्म द केरला स्टोरी में उनके निर्देशन को सराहते हुए उन्हें स्वर्ण कमल से विभूषित किया जा रहा है। Sudipto Sen wins for the Kerala story for masterfully capturing each frame to heighten the emotional gravity and realism of the narrative. श्री सुदीप्तो सेन प्राप्त कर रहे हैं द गोल्डन लोटस। सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक फिल्म का पुरस्कार तेलुगु फिल्म हनुमान के एनिमेटर और VFX सुपरवाइजर श्री वेंकट कुमार जेठी के नाम। आपकी रचनात्मकता का सम्मान करते हुए आपको प्रतिष्ठित स्वर्ण कमल से नवाजा जा रहा है। Ladies and gentlemen, for its curious blend of live action, animation and visual effects, Hanuman proves that technical excellence and emotional depth can coexist,
earning its place as a visual spectacle. और मंच पर आमंत्रित करती हूँ फिल्म हनुमान के प्रोड्यूसर प्राइम्स एंटरटेनमेंट की ओर से श्री निरंजन रेड्डी। आप भी ग्रहण कर रहे हैं द गोल्डन लोटस। तालियों का जोश बनाए रखें क्योंकि फिल्म हनुमान के डायरेक्टर श्री प्रशांत वर्मा पेनमेंसा को भी उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्राप्त हो रहा है गोल्डन लोटस। फिल्म हनुमान के डायरेक्टर श्री प्रशांत वर्मा पेनमेंसा मंच पर पधारते हुए आप ग्रहण कर रहे हैं प्रतिष्ठित स्वर्ण कमल। मान्यवर सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म है मराठी फिल्म नाल 2। इस भावपूर्ण और संवेदनशील प्रस्तुतिकरण के लिए निर्माता जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड और आर्ट पार्ट प्रोडक्शंस प्राप्त कर रहे हैं स्वर्ण कमल और इनकी ओर से श्री उमेश कुमार बंसल ग्रहण कर रहे हैं द गोल्डन लोटस। सर्वोच्च गोल्डन लोटस पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं श्री उमेश कुमार बंसल मराठी फिल्म नाल 2 की ओर से और इसी फिल्म के निर्देशक श्री सुधाकर रेड्डी यकांती भी स्वर्ण कमल से गौरवान्वित किए जा रहे हैं। Recognized for a sensitive portrayal of childhood bonds, adoption and emotional growth, Naal 2 elegantly captures a child's perspective in rural Maharashtra, conveying universal values through its gentle narrative. राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों का प्रोत्साहन करने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार फिल्म सैम बहादुर के नाम। इस फिल्म के लिए निर्माता RSVP की ओर से श्री रोनीवाला स्क्रूवाला प्राप्त कर रहे हैं सिल्वर लोटस। और अब मंच पर पधार रही हैं फिल्म सैम बहादुर की डायरेक्टर सुश्री मेघना गुलजार अपना राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार ग्रहण करने के लिए। Sam Bahadur presents a stirring tribute of courage, integrity and patriotism through the life of Field Marshal Sam Manekshaw, evoking deep respect for India's military legacy. सुश्री मेघना गुलजार अपना राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त करते हुए पूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार हिंदी फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को दिया जा रहा है। निर्माता धर्मा प्रोडक्शंस की ओर से श्री अपूर्व मेहता ग्रहण कर रहे हैं स्वर्ण कमल द गोल्डन लोटस। Rocky और रानी की प्रेम कहानी presents a heartwarming celebration of cultural fusion, social understanding. The film employs sharp writing, vibrant storytelling to challenge stereotypes, tackling issues such as fat shaming, misogyny and more. और मंच पर आमंत्रित करती हूँ फिल्म के निर्देशक श्री करण जौहर को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए स्वर्ण कमल का पुरस्कार ग्रहण करने के लिए। पूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के निर्देशक श्री करण जौहर अपना राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार ग्रहण करते हुए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में डेब्यू फिल्म का स्वर्ण कमल पुरस्कार मराठी फिल्म आत्मा पैम्फलेट के नाम श्री आशीष अविनाश बेंडे को प्रदान किया जा रहा है ये राष्ट्रीय पुरस्कार। To the director for skillfully blending innocence, nostalgia, casteism, political undertones with remarkable vision and originality, heralding a bold new cinematic voice. श्री आशीष अविनाश बेंडे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त करते हुए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार हिंदी फिल्म 12th फेल को मिल रहा है। फिल्म के निर्देशक श्री विधु विनोद चोपड़ा प्राप्त कर रहे हैं स्वर्ण कमल। Ladies and gentlemen, 12th Fail delivers an emotionally stirring narrative that spotlights education, grit, and systemic change, imbuing it with humanistic depth that elevates it beyond conventional biopics. करोड़ों युवाओं के सपनों के लिए आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है ये हिंदी फिल्म 12th फेल।
खेल जिसके निर्देशक श्री रितु विनोद चोपड़ा अपना पुरस्कार ग्रहण करते हुए। On that note, thank you, Honorable President, for presenting these awards, and thank you, distinguished guests, for being a part of it. मान्यवर, अब वक्त है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार को प्रदान करने का। इस वर्ष दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का सम्मान प्राप्त कर रहे हैं विख्यात एवं प्रतिष्ठित अभिनेता, 5 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता, पद्म भूषण एवं पद्मश्री से सम्मानित श्री मोहनलाल जी। भारतीय सिनेमा में आपके अतुल्य योगदान के प्रति सम्मान है दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। Legendary actor, director and producer Shri Mohan Lal is being honored with Dada Saheb Phalke Award for the year 2023 in the 71st National Awards for his unparalleled contribution to Indian cinema. Best known for his work in Malayalam cinema, Mohan Lal, widely referred to as the complete actor, has appeared, ladies and gentlemen, in over 360 films across a career spanning almost 5 decades, delivering landmark performances in films such as Bharatam, Vanaprastham, Drishyam, and more. I request Honorable President to please come forward, ma'am, to deliver the award, and I invite on stage iconic actor Shri Mohan Lal. कर्तव्य के साथ स्वागत करें पद्मश्री पद्म भूषण से सम्मानित हर दिल अजीज विलक्षण अभिनय प्रतिभा के धनी श्री मोहनलाल जी का। ये सम्मान श्री मोहनलाल जी को उनके शानदार योगदान, अद्भुत अभिनय और कला के लिए दिया जा रहा है, जिन्होंने सिनेमा को नया रूप दिया, कई कलाकारों को प्रेरित किया और खुद को एक महान कलाकार के रूप में साबित किया। Shri Mohan Lal being recognized for his monumental contributions, unparalleled versatility, artistry that have profoundly shaped narrative cinema, inspired generations of artists, cemented his legacy as a cultural phenomena, and a great master of his craft. श्री मोहनलाल जी को दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की ढेरों बधाई। Thank you, Honorable President and distinguished guests. Many congratulations, Shri Mohan Lal. Ladies and gentlemen, we now play a short film that takes us through the life and times of the icon of Indian cinema, Mohan Lal. और अब मैं आदरणीय श्री मोहनलाल जी से सादर आग्रह करती हूं कि इस विशेष अवसर पर हम सबके साथ अपने उद्गार साझा करें। तालियों से स्वागत करें 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध अभिनेता श्री मोहनलाल जी का। Honorable Rashtrapati Srimati Draupadi Murmu, respected Minister for Information and Broadcasting Sri Ashwini Vaishnav ji, esteemed dignitaries, cherished colleagues from the film fraternity, ladies and gentlemen. It's with profound pride and gratitude that I stand before you today, having received the prestigious Dada Saheb Phalke Award, an honor instituted by the Government of India in the name of the revered father of Indian cinema. As a representative of the Malayalam film industry, I am deeply humbled to be the youngest recipient and only the second ever from the state to be bestowed with this national recognition. This moment is not mine alone. It belongs to the entire Malayalam cinema fraternity. I see this award as a collective tribute to our industry, legacy, creativity, and resilience. When I first received the news from the center,
I was overwhelmed not merely by the honor, but by the privilege of being chosen to carry forward the voice of our cinematic tradition. I believe this is a destiny's gentle hand allowing me to accept this award on behalf of all those who have shaped Malayalam cinema with their vision and artistry. To be honest, I never dared to dream of this moment, not even in my wildest dreams. And so this is not a dream come true. This is something far greater. It's magical. It's sacred. It roots me more deeply in gratitude and responsibility. I accept this award as the blessing of my forerunners, the legendary masters of Malayalam cinema, past and present. I dedicate it to them, to the vibrant Malayalam film industry, and to the discerning, intelligent audience of Kerala who have nurtured our art with love and insight. As Kumaran Ashan, the great poet, reformer, and philosopher once wrote in Veena-Poovu, "Chidayilazhnu poyathu mallu chiramanoharamaya poovidu." This flower did not merely fall into the dust. It lived a life of beauty. Let this moment be a tribute to all those who bloomed with brilliance and faded with grace, leaving behind a fragrance that continues to inspire. As an actor and film personality, this honor strengthens my resolve. It deepens my commitment to cinema, and I pledge to continue my journey with renewed sincerity, passion, and purpose. In closing, I extend my heartfelt thanks to the Government of India, Honorable Rashtrapati Ji, Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi Ji, the Ministry of Information and Broadcasting, and the esteemed members of the jury who found me worthy of this accolade. എൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ സ്പന്ദനമാണ് സിനിമ. Cinema is the heartbeat of my soul. Jai Hind. बहुत बहुत धन्यवाद अति सम्मानीय श्री मोहनलाल जी। आपके हृदय स्पर्शी उद्गारों के लिए आपका हार्दिक आभार। आपको दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए ढेरों शुभकामनाएं। भारतीय सिनेमा में आपका योगदान सदैव स्मरण किया जाता रहेगा। और अब माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से मैं सादर अनुरोध करती हूं कि कृपया आज के सुअवसर पर अपने आशीर्वचनों से हमें प्रेरित करें, हमारा मार्गदर्शन करें। माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। इस समारोह में उपस्थित सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारीगण, निर्णायक मंडल के अध्यक्षगण तथा सदस्यगण, गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजन, सभी को नमस्कार। मैं आज के सभी पुरस्कार विजेताओं को हार्दिक बधाई देती हूँ। मोहनलाल जी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देती हूँ। उन्होंने कमल से कोमलतम और कठोर से कठोरतम भावों को सहजता से प्रस्तुत किया है और द कंप्लीट एक्टर की उनकी छवि बनी है। मुझे ये जानकर सुखद आश्चर्य हुआ है कि उन्होंने महाभारत के चरित्र कर्ण पर आधारित एक लंबे संस्कृत नाटक कर्णभारम में कर्ण भूमिका निभाई है। एक तरफ उनकी प्रस्थम जैसी गंभीर फिल्म है तो दूसरी तरफ अनेक अत्यंत लोकप्रिय फिल्में हैं। मुझे जानकारी मिली है कि मोहनलाल जी के पुरस्कार की घोषणा होने पर लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। ये इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने अनगिनत दर्शकों के दिल में अपनी जगह बनाई है।
देवी और स्वजनों, जहां विश्व के सबसे बड़े फिल्म उद्योग के उत्कृष्ट प्रतिनिधि उपस्थित हैं, आप सबसे अधिक प्रभावी और लोकप्रिय कला माध्यम से द्वारा विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र तथा सबसे अधिक विविधतापूर्ण समाज का परिचय करता है। हम कह सकते हैं कि इस सभागार में आप सबके जरिए पूरे भारत के स्वरूप दिखाई दे रही है। हर वर्ष राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में आने से पहले मुझ में ये जिज्ञासा भी रहती है और उत्साह भी रहता है कि इतने मेहनत से जो फिल्म बनाया गया है उनमें क्या दिखाया गया है, कैसे दिखाया गया है और किस उद्देश्य से दिखाया गया है। मुझे ये जानकर खुशी होती है कि सिनेमा से जुड़े सभी लोगों के एक भारतीय चेतना है, इंडियन सेंसिटिविटी है, जो सभी स्थानीय सदस्यों को भी जुड़ते हैं। जैसे अनेक भाषाओं में भारतीय साहित्य की रचना होती है, ऐसे ही अनेक भाषाओं, बोलियों, क्षेत्रों और स्थानीय परिवेशों में भारतीय सिनेमा विकसित हो रही है। हमारी फिल्में स्थानीय होने के साथ साथ राष्ट्रीय भी है। देवी और स्वजनों, महिलाओं पर केंद्रित अच्छी फिल्में बन रही है और पुरस्कृत भी हो रही है। ये बहुत अच्छा सामाजिक संकेत है। हम सभी देखते हैं कि महिलाएं किसी न किसी स्तर पर पॉवर्टी, पैट्रियार्ची या प्रिजुडियस से जूझते हैं। आज पुरस्कृत फिल्मों में माताओं द्वारा बच्चों के नैतिक निर्माण की कहानी, सामाजिक रूढ़ियों का सामना करने के लिए महिलाओं का एकजुट होना, घर, परिवार और सामाजिक व्यवस्था की जटिलता के बीच महिलाओं की स्थिति तथा पैट्रियार्ची की विशेषताओं के विरुद्ध आवाज उठाने वाली साहसी महिलाओं की कहानियों पर आधारित फिल्में शामिल हैं। मैं देश की सभी बहनों और बेटियों की तरफ से ऐसे संवेदनशील फिल्मकारों को साधुवाद देती हूँ। मैं अपना अनुभव और अनुरोध दोहराती हूँ कि जिस तरफ शिक्षण संस्थानों के पुरस्कार समारोह में विजेता बेटियों की संख्या अधिक होने में विकसित भारत की झलक दिखाई देती है, वही प्रयास फिल्म पुरस्कार में भी होना चाहिए। मैं मानती हूँ कि समान अवसर मिलने पर महिलाओं ये असाधारण प्रदर्शन कर सकते हैं। कला और सिनेमा जैसे क्षेत्र में भी उनकी सहज प्रतिभा के अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। फिल्म से जुड़ी ऐसी उत्कृष्ट महिला प्रतिभाओं को पर्याप्त मान्यता मिलनी चाहिए। जूरी के सेंट्रल पैनल और रीजनल पैनल्स में भी महिलाओं का समुचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इस बात पर जितना भी जोर दिया जाए वो कम है कि सिनेमा केवल उद्योग नहीं है और समाज और देश को जागरूक बनाने का तथा देशवासियों को अधिक संवेदनशील बनाने का शक्तिशाली माध्यम भी है। लोकप्रिय होना किसी फिल्म के लिए अच्छी बात है, हो सकती है, लेकिन लोकहित में होना, विशेषकर युवा पीढ़ी के हित में होना और भी अच्छी बात है। एक फिल्म को बनाने में बहुत से लोग कठिन परिश्रम करते हैं। मैं पुरस्कार विजेताओं से अनुरोध करती हूँ कि वे अपनी टीम के प्रत्येक सदस्यों को, सेट पर काम करने वाले श्रमिक भाई बहनों तक मेरी बधाई पहुंचाएं। आपकी सफलता में उन सबका योगदान रहता है। उनके प्रति सम्मान और संवेदनशीलता का भाव रखना फिल्म उद्योग के वर्क कल्चर का हिस्सा होना चाहिए। आज के पुरस्कार विजेताओं में एक तरफ जाने माने स्टार एक्टर्स और फिल्म मेकर्स है, तो दूसरी तरफ टैलेंटेड यूथ है। मैं आप सभी को फिर से बधाई देती हूँ। युवा प्रतिभाओं में संवेदनशीलता और जागरूकता देखकर
भारत के सुदृढ़ भविष्य के प्रति आस्था मजबूत होती है। देवी और स्वजनों, बच्चों पर, विशेषकर बेटियों पर केंद्रित फिल्मों को प्रोत्साहित करने के लिए मैं इस पुरस्कार समारोह से जुड़े लोगों की सराहना करती हूँ। आज 6 बाल कलाकारों को पुरस्कार दिए गए हैं। मैं आप सभी प्रतिभाशाली बच्चों को ढेर सारा आशीर्वाद देती हूँ। गांधी ताता चेट्टू नामक तेलुगु फिल्म में एक छोटी सी बच्ची एक पेड़ को बचाने के लिए सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। ऐसी कहानियों बच्चों में तथा पूरे समाज में अच्छे जीवन मूल्यों तथा पर्यावरण के प्रति जागरूकता का संचार करता है। इस वर्ष सर्वश्रेष्ठ मराठी फिल्म का पुरस्कार एक प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित सामची आई नामक फिल्म को दिया गया है। 81 वर्ष पहले वर्ष 1954 में आयोजित फर्स्ट नेशनल फिल्म अवार्ड में उसी उपन्यास पर आधारित सामची आई नाम की ही एक मराठी फिल्म को ऑल इंडिया बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया था। उस उपन्यास में एक माँ अपने बच्चों को जीवन के आदर्श सिखाती है, अपनी करुणा और स्नेह से उसके व्यक्तित्व को बनाती है। इसी कहानी पर आधारित 2 फिल्मों को 8 दशकों से अंतराल पर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इससे ये स्पष्ट होता है कि पिछले 80 वर्षों में फिल्म बनाने की टेक्नोलॉजी और तरीका भले ही पूरी तरह बदल गए हैं, लेकिन माँ की ममता और मानवता के संदेश की ताकत अपने ही प्रभावी है। परिवार से जुड़े भावनाएं भारतीय फिल्मों में पूरी तरह जीवंत है।